Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College, Mansehra. Dear student, in the last lecture we have discussed about physical quantity. What is physical quantity? Physical quantity are those quantity which can be measured. We also discuss types of physical quantity. We see that physical quantity can be categorized into two types. First is base quantity and second one is derived quantity. What is base quantity? Base quantity are those in terms of which other physical quantity can be defined, like length, mass, time. All these quantity which are given in a table are base quantity. Second, derived quantity. The physical quantity that are expressed in terms of base quantity are called derived quantity, like area, volume, density. These are what? These are derived quantity. So student, we also discussed measurement. What is measurement? The comparison of something with standard is known as measurement. Second, unit. What is unit? The standard with which things are compared is known as unit. And the last we discussed about magnitude. What is magnitude? As we see that physical quantity is expressed as a product of number and unit. For example, 5 kg sugar. 5 is a number and kg is a unit. The product of these two things, number and unit, is known as magnitude. What? A number with proper unit is known as magnitude. So student, these are few main points of previous lecture. Now student, in this lecture we discuss about system international unit. So what are system international unit? Dear student, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या होते हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, उनको पढ़ लेते हैं. जैसा कि माजी में आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ की आपके पास डिफरेंट यूनिट वो यूज़ करते थे. इज़ दैट क्लियर? माजी में आपके पास जो भी कंट्री होती थी अपने ही यूनिट वो यूज़ करती थी. इन द मिडल ऑफ लास्ट सेंचुरी, पिछली सदी के मिडल में एक इंटरनेशनल कमेटी ने मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटी के यूनिट पर आपके पास एक कमेटी बिठाई, जिसमें इंटरनेशनल जो लोग थे वो कुछ यूनिट पर क्या हो गए, मुत्तफ़िक हो गए. और उन सेट ऑफ यूनिट जिस पर इंटरनेशनल सेट ऑफ कमेटी जो है वो मुत्तफ़िक हुई, उसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट. इज़ दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट? So we see that in past the system of unit of one country is totally different from other country. In the last of middle century, an international committee agree on a set of unit to measure physical quantities, and this set of unit is called System International Unit and denoted by SI, System International Unit. I hope it is clear. What are the advantages of System International Unit in our daily life? We see that this system is used throughout the world. These units are convenient for daily life use. What? These units are very convenient for daily life use. हम इनको आगे देख भी लेंगे कहाँ कहाँ हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं. बिसाइड दिस, साइंटिस्ट जो होते हैं वो आपके पास इन्हीं यूनिट के अंदर अपनी रिसर्चेस अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह को दुनिया के साथ शेयर करते हैं. सो ये आपके पास सिस्टम इंटरनेशनल के बहुत बड़े फ़ायदे हैं. एक तो जितने भी साइंटिस्ट हैं दुनिया के साथ अपने रिसर्चेस इन्हीं यूनिट के अंदर क्या करते हैं, पेश करते हैं, और हम अपनी डेली लाइफ में इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को यूज़ करते हैं. ये हम इसी लेक्चर में आगे देख लेंगे. सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट.
So student, now come to the next topic, that is derived quantities. Student, in the last lecture we see that derived quantity are those quantity that are expressed in terms of base quantity are called derived quantity, and these quantity are like area, volume, volume of solid, liquid एंड डेंसिटी एट्सेट्रा। आज मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा कि किस तरह ये हमारे पास जो बेस क्वांटिटी से ये वाली डिराइव क्वांटिटी जो है किस तरह बेस क्वांटिटी से प्रोड्यूस हुई हैं। सो फर्स्ट एरिया, एरिया को मेजर करने के लिए स्टूडेंट हमें लेंथ और विड्थ चाहिए होती है। किसी भी चीज़ की लंबाई और चौड़ाई हमें चाहिए होती है। ये लेंथ का क्या है, फार्मूला है। एरिया को फाइंड करने का ये आपके पास क्या है, फार्मूला है। अब एरिया जो है मैं कहता हूँ ये मेरे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है, और डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जो आपके पास बेस क्वांटिटी से आई हुई हो। अब ये बेस क्वांटिटी से किस तरह आई हुई हैं देख लेते हैं। अब लेंथ को अगर हम देख लेते हैं, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, और मीटर आपके पास बेस क्वांटिटी से आया हुआ है। विड्थ इज आल्सो अ लेंथ विच कैन बी मेजर इन मीटर, so we can say that these two come from base quantity, so that's why area should be derived quantity and the unit of area is meter square। इसको भी मीटर में लेंगे, इसको भी मीटर, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वी सी दैट किसी भी वॉल्यूम को, किसी भी सॉलिड के वॉल्यूम को मेजर करना हो तो आपको तीन चीज़ें उसकी चाहिए होंगी, उसकी लंबाई, उसकी हाइट या उसकी चौड़ाई। लंबाई, चौड़ाई, उसकी हाइट। अब लंबाई को भी मेजर करते हैं मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में मेजर करते हैं, और हाइट को भी मीटर में। सो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है एक्चुअली आल्सो डिराइव्ड क्वांटिटी विच कम फ्रॉम बेस क्वांटिटी। लेंथ को मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर 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 क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। सो इट इज यूनिट इज मीटर क्यूब। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेसिकली हम स्टूडेंट, इसका जो यूनिट होता है आपके पास मीटर क्यूब होता है, क्यूबिक मीटर कहते हैं या मीटर क्यूब। अब क्यूबिक मीटर में उस एक बर्तन सा होता है बड़ा सा, उस बर्तन की लंबाई, चौड़ाई और हाइट को मेजर करते हैं, और सेम इसी तरह आपके पास उसका यूनिट क्या आ जाता है, मीटर क्यूब आ जाता है। लेकिन हम डेली लाइफ में मीटर क्यूब नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि वो आपके पास बहुत बड़ा पैमाना है। हम डेली लाइफ में इसको लीटर में लेते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मास, मास कहाँ से आए हुए, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, एंड किलोग्राम इज व्हाट, बेस क्वांटिटी। वॉल्यूम, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम मेजर करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसा कि अभी ऊपर हमने वॉल्यूम मेजर करना था। वॉल्यूम मेजर करने के लिए क्या करते हैं, अगर सॉलिड हो तो लेंथ, विड्थ, हाइट करते हैं, और अगर लिक्विड हो तो आपके पास सेम इसी तरह लिक्विड और सॉलिड के दोनों के केस में हो जाएगा। तो मास किलोग्राम, वॉल्यूम मीटर क्यूब। सो मास किलोग्राम, और ये ऊपर चला जाएगा तो मीटर क्यूब इनवर्स। सो दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। सो वी सी दैट स्टूडेंट, एरिया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी आर डिराइव्ड क्वांटिटी। मैंने आपको प्रूव करके बताया कि किस तरह ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इन आवर डेली लाइफ। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट वन, मीटर रूलर या मीटर कह सकते हैं आप। अब एक मीटर क्या होता है, किसी भी चीज़ की लंबाई को या किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक्चुअली हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, मीटर का वर्ड यूज़ करते हैं। एक मीटर
लेट्स सपोज 1 मीटर कपड़ा दे दो, या इस रूम की लंबाई 4 मीटर है, तो वो मीटर क्या होता है एक्चुअली उसको देख लेते हैं। वी यूज़ मीटर एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लंबाई को, किसी भी चीज़ की लंबाई को मेजर करने के लिए जो स्केल यूज़ होता है उसको बच्चों कहते हैं मीटर। अब मीटर जो है, स्टैंडर्ड मीटर जो है, अब जो स्टैंडर्ड जो है जिस पर आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट हैं वो एग्री हैं, वो कैसा है, कहाँ है, वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड मीटर जो है वो आपके पास दो एलिमेंट से बनाए हुए, दो मेटल से बनाए हुए, जिसको कहते हैं प्लेटिनम और इरिडियम। व्हाट? प्लेटिनम एंड इरिडियम एलाई। एलाई किसको कहते हैं? जब कभी भी आप दो मेटल्स को मिक्स करते हैं सॉलिड फॉर्म में, उसको लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं और मिक्स करते हैं, उससे जो आपके पास सॉलिड फॉर्म में दोबारा आते हैं उसको कहते हैं एलाई। सो वी कैन से दैट standard meter is the length of platinum iridium alloy metal rod kept at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको रखा जाता है इन इंटरनेशनल बैरो नियर फ्रांस। फ्रांस के करीब आपके पास इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट का जो आपके पास जगह है, वहाँ पर मीटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया है। So it is clear about meter. We use meter as a unit of measurement of length. The standard meter is the length of platinum iridium alloy metal rod kept at 0 degree centigrade in International Bureau of Weight and Measurement at near France. Is that clear? Now next, the most important unit which we are using in our daily life is किलोग्राम। स्टूडेंट, किलोग्राम से तो आप वाकिफ़ ही होंगे। किलोग्राम आप जितनी भी चीज़ें नापने के लिए यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज 1 किलो शुगर लेके आ जाओ, 2 किलो लेके आ जाओ, ये जो किलो एक्चुअली है इसको बच्चों आप कहते हैं किलोग्राम। अब ये किलोग्राम कैसा होते हैं, स्टैंडर्ड किलोग्राम कैसा है, कहाँ है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। किलोग्राम इज़ आल्सो अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ डिफरेंट थिंग्स। बच्चों, ये आपको किसी भी चीज़ के मास को मेजर करने के लिए एक्चुअली हम क्या करते हैं, किलोग्राम यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड किलोग्राम इज़ द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर। जो ओरिजिनल आपके पास या स्टैंडर्ड जो आपके पास किलोग्राम है वो प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर है, जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में रखा गया है। सो सिमिलरली लाइक मीटर रॉड, इट इज़ आल्सो मेड फ्रॉम platinum iridium cylinder placed in International Bureau of Weight and Measurement. So this is about what? Kilogram. The third unit which we are using in our daily life is cubic meter or liter. Cubic meter या simply liter. What is cubic meter? Cubic meter is the system international unit of volume. किसी भी लिक्विड को मेजर करने के लिए जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो आपके पास क्यूबिक मीटर है। बच्चों याद रखने, लीटर नहीं है। स्टैंडर्ड जो आपके पास लिक्विड को मेजर करने के लिए, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो आपके पास क्यूबिक मीटर है, नॉट लीटर। लेकिन वी यूज़ लीटर इंस्टेड ऑफ मीटर क्यूब इन आवर डेली लाइफ। क्यूबिक मीटर जो है ये बहुत बड़ा यूनिट है। इसमें तकरीबन 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होते हैं, इसीलिए हम अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ नहीं कर सकते, जबकि इसके बजाय हम क्या करते हैं, लीटर को यूज़ करते हैं। लीटर आपके पास क्या होता है, मीटर क्यूब के मुकाबले में छोटा यूनिट है। सो इट इज़ अबाउट क्यूबिक मीटर। फर्स्ट, cubic meter is the SI System International Unit of Volume. We use liter instead of meter cube in our daily life, which is smaller unit than meter cube. We see that 1 cubic meter is equal to 1000 लीटर। 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 1000 लीटर होते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि 1 क्यूबिक मीटर जो है 1000 लीटर कंबाइन होके 1 क्यूबिक मीटर बनाते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यूनिट है। अब या 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1000 पार्ट ऑफ क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर का 1000वें पार्ट का एक हिस्सा आपके पास लीटर कहलाता है, और 1 लीटर के अंदर आपके पास 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर जो होता है ये लीटर से भी आपके पास छोटा यूनिट है। सबसे बड़ा यूनिट आ जाता है क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 1000 लीटर होते हैं, और 1 लीटर जो है आपके पास 1000वां हिस्सा एक लीटर जो है 1000वां हिस्सा क्यूबिक मीटर का है। और 1 लीटर के अंदर आपके पास छोटे यूनिट होते हैं जिसको हम कहते हैं मिलीलीटर। जैसा कि किलोग्राम 1000 ग्राम होते हैं ना, 500 ग्राम, आधा किलो हम कहेंगे 1 ग्राम। इसी तरह 1 लीटर के अंदर 1 ml, 2 ml, 3 ml, 1000 ml जब होंगे तो जब आपके पास क्या हो जाएंगे, 1 लीटर आ जाएगा। और 1 ml तकरीबन 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। Is that clear? This is all about cubic meter which we are using in our daily life. Not using in our daily life, we use liter instead of cubic meter in our daily life. And the last one is second. Second, you know that students, second is the unit of time. अब टाइम का यूनिट सेकंड है। अब एक दिन के अंदर बच्चों होते हैं 24 घंटे। एक दिन के अंदर क्या होते हैं 24 आवर। एक मिनट, एक सेकंड स्टूडेंट, एक दिन के अंदर जिसको हम कहते हैं 1 सोलर डे, एक दिन के अंदर बच्चों होते हैं 24 घंटे। ये तो आप सबको पता है, एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। और 1 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 24 इंटू 60 इंटू 60, ये आपके पास बन जाते हैं 1 सोलर डे। अब 1 सोलर डे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, कितने सेकंड्स होते हैं 1 सोलर डे के अंदर होते हैं 86,400 सेकंड। ये आपके पास 1 सोलर डे के अंदर क्या होते हैं सेकंड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 4,400वां पार्ट का एक हिस्सा जो है आपके पास 1 सेकंड कहलाता है। या सिंपली वी कैन से दैट 1 सोलर डे में आपके पास इतने सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं 86,400 सेकंड 1 सोलर डे के अंदर होते हैं। तो 1 सोलर डे का आपके पास 86,400वें पार्ट का एक पार्ट जो होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा 1 सेकंड कहलाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेकंड which we are using in our daily life. So student, this is all about the uses of system international units in our daily life. Now student, come to the main points of today lecture. Student, आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स हैं हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। As we see that in past the system of unit of one country was different from that of other country. However, in the middle of last century, International Committee agree on a set of unit to measure physical quantity. This set of unit is called System International Unit and it is denoted by SI. Second main point, derived quantity. We see that area is the derived quantity which is the combination of length multiplied by width, and length and width can be measured into meter, so that's why we can say that it is derived quantity. Second, volume of solid. Volume of solid can be measured into length multiplied by width multiplied by height, and we see that length, width and height can be measured into meter, and meter is the unit of what? Meter is the unit of base quantity, so that's why we can say that it is derived quantity which come from base quantity. Next, density. Density is equal to mass per unit volume. We see that mass is the unit of
kilogram, and kilogram is the unit of what? Base quantity. And volume. Volume can be measured into length multiplied by width multiplied by height. Mean to say it can be measured into meter cube. So we can say that mass and volume both come from what? Base quantity, and all those quantity which are derived from base quantity are called derived quantity. Third main point, System International Unit and their uses in our daily life. Meter. First one, meter. We use meter as a unit for the measurement of length. This standard meter is the length of platinum, iridium, alloy, metal rod keep at 0 degree centigrade in International Bureau of Weight and Measurement near France. Second, kilogram. Kilogram is the unit of measurement of mass of different things. The standard kilogram is the mass of platinum, iridium cylinder placed in International Bureau of Weight and Measurement. Cubic meter. In SI unit, cubic meter is the unit of measurement of volume. However, in our daily life, volume of liquid is measured in liter. We see that 1 cubic meter is equal to 1000 liter, 1 liter is equal to 1000 milliliter, and 1 ml is equal to 1 centimeter cube. Second, in SI unit, the unit of time is second, which is 1 divided by 86,400 part of mean of solar day. So this is all about the uses of System International Unit in our daily life. Now come to the homework. Before going to homework, student, you should memorize what is System International Unit. System International Unit क्या होता है, System International Unit के डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस होती हैं, उनकी यूनिट किस तरह, 1 लीटर के अंदर कितने यूनिट होते हैं या 1 किलोग्राम के अंदर कितने होते हैं, ये आपको आना चाहिए, ये आपने याद रखना है। होमवर्क स्टूडेंट आपका है कि आपने व्हाट इज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, इसके ऊपर नोट लिखना है। इन सेकंड, राइट द यूजेस ऑफ यूनिट इन आवर डेली लाइफ। So this is your homework. I hope it is clear now. If you have any doubt, you may ask any question in message. So thanks, take care, Allah Hafiz.